Yes, students. Today in this chapter, I will revise geography, our country, India. And in this chapter, through map, you will be able to understand all the location of our country. India is a vast country, and you should know the direction wise. East, you will mark here, west, north, and south. So, first of all, after marking the direction on your map, you should know Nadran Mountains lies here in this part. Nadran Mountains are known as Nadran Mountains because these are situated on the Nadran side, Himalayan range here. Then next is water bodies. Water bodies, here you will mark Bay of Bengal, then Arabian Sea West, Indian Ocean in the south, so these are the water body. Then India has an area of 3.28 million square kilometer. Clear? Total area of India. Then the north-south extent from Kashmir to Kanyakumari is 3,200 kilometers. When we draw a line here, it means the total length is 3,200 kilometers from Kashmir to Kanyakumari. North, south extent. Then east, west extent is 2,900. 2,900 kilometers. Clear? Then the Great Indian Desert lies in the west part. Here you will mark Thar or Great Indian Desert in the western part of our country. Then the country of India, it has eastern, western, northern and south side, and climate and vegetation is also different because of the so many factors. Climatic factors are there, physical factors are there. Even in our country, diversity is there. Diversity means languages, culture. Okay? So each state has its own language, own culture. And India, according to population, the number of India is at the second from the world. So which country is as the first? China. China is the most populous country. ठीक है? Then its locational setting. आपको इसकी locational setting जो है वो पता होनी चाहिए. That India is located in the northern hemisphere. ठीक है? Northern hemisphere में है तो कौन सी latitude इंडिया से पास ऑन होती है? Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. Then इसका अगर आपने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अगर आपको पूछी जाती है कि इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कि इंडिया की ग्लोब की पोजीशन क्या है लैटिट्यूड पे, देन यू विल राइट 8 डिग्री 4 37 डिग्री 6. ये है इंडिया की लैटिट्यूडनल वैल्यू या लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी कि इंडिया की लैटिट्यूड पे जो पोजीशन है वो कितनी है? 8 डिग्री 4 नॉर्थ 37 डिग्री 6 नॉर्थ. ठीक है? अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू, लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू कैसी, यानी कि इंडिया की ग्लोब के ऊपर लॉन्गिट्यूड कौन से लॉन्गिट्यूड पे है, देन यू विल राइट 68 डिग्री 7. ठीक है? अब लॉन्गिट्यूड आपने बताना है तो लॉन्गिट्यूड में अगर देखा जाए तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है? ईस्टर्न. देन यू विल मार्क ई 97 डिग्री 25
E. दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू, ठीक है। तो लैटिट्यूड की अगर पोजीशन देखा जाए तो इंडिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, देन वी विल राइट 8 डिग्री 4 एंड 37 डिग्री 6 एन, मींस इंडिया की लैटिट्यूडनल वैल्यू जो है दैट इज 8 डिग्री 4 37 डिग्री 6। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूड की वैल्यू देखी जाए कि इंडिया जो है ग्लोब, ठीक है, तो हम इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मार्क करते हैं 68 डिग्री 7 ईस्ट, 97 डिग्री 25 ईस्ट। नेक्स्ट इज अबाउट द you can say different neighboring countries of our country. So you will mark neighboring countries also. Nepal, China here, Bhutan, Pakistan, here Afghanistan, then Bangladesh, then Sri Lanka, हाँ जी, यहाँ पे आएगा मालदीव, म्यांमार, तिब्बत। दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेबरिंग कंट्रीज जो हैं, ठीक है, कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। तो हमारी इंडिया की 7 नेबरिंग जो कंट्रीज हैं वो लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। लेकिन 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो आइलैंड नेबर हैं। आइलैंड नेबर कौन से हैं? श्रीलंका एंड मालदीव, ठीक है। और हमारी इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 82 डिग्री 30 ईस्ट, 82 डिग्री 30 ईस्ट, यानी कि पूरी हमारी कंट्री का जो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे इंडिया से ना बेटा अलग अलग जो है वो लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स पास होती हैं। हमने अपनी इंडिया की कौन सी लॉन्गिट्यूड का जो टाइम है वो टाइम लिया है, ये टाइम जो है वो यहाँ से पास होता है, जो हमारी कंट्री का मिड माना जाता है। ये जो 82 डिग्री 30 यहाँ पे है, सपोज इफ वी विल ड्रॉ लाइन हेयर, तो इस लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम होगा वो पूरी कंट्री का टाइम होगा। और ये उत्तर प्रदेश में है मिर्जापुर, ठीक है, और ये इस जगह का जो टाइम है वो पूरी कंट्री का लोकल टाइम होगा। तो ये टाइम कितना है, ठीक है, 82 डिग्री 30 ईस्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन, 82 डिग्री एंड 30 ईस्ट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ आवर कंट्री। स्टैंडर्ड मेरिडियन का मतलब होता है, वैसे देखा जाए तो हमारी कंट्री में ईस्ट से लेकर वेस्ट तक टाइम डिफरेंट होगा, क्योंकि जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड जो है वो चेंज होती जाएंगी। हर लॉन्गिट्यूड पे कितने मिनट का डिफरेंस होता है? 4 मिनट्स। लेकिन इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने क्या किया है, पूरी कंट्री की एक कॉमन मेरिडियन ली है, इस पे जो टाइम है वो पूरी कंट्री का कॉमन टाइम है, ठीक है, ताकि कभी जैसे हम कहते हैं ट्रेन के लिए या सपोज जब एक पर्सन दूसरी स्टेट में जाता है उसको टाइम की कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमारी कंट्री में पूरी कंट्री का एक ही लोकल टाइम है, और ये लोकल टाइम जो यहाँ पे होता है वो पूरी कंट्री का लोकल टाइम है, और इसको क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, दैट इज 82 डिग्री 30 ईस्ट हैज बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। हमारी कंट्री के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में टोटल कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, नहीं 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, क्लियर। अब फिजिकल फीचर्स की बात करें तो हमारी कंट्री में सबसे जो 6 मेन फिजिकल डिविजन्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी फिजिकल डिविजन्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर मैप में उसको लोकेट करें, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ फिजिकल डिविजन्स। नंबर 1 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न माउंटेन्स,
यस, नदर्न माउंटेन्स कहाँ पे मार्क करेंगे हम? नदरन साइड, ठीक है। मैं जहाँ पे 1 लिख रही हूँ इट मीन्स वो क्या है? नदरन माउंटेन्स, ठीक है। ये सारा जो है ये एरिया नेपाल के साथ साथ इवन ये एरिया और ये एरिया यहाँ पे माउंटेन्स 1, दिस एरिया विल बी मार्क्ड एज नदरन माउंटेन। वो सिक्किम है, ये सिक्किम है। क्लियर? इट इज क्लियर? मैं अभी ये रेज कर रही हूँ क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इज नदरन फर्टाइल प्लेन, या हम इसको इंडो गैंगेटिक प्लेन भी कहते हैं। ये एरिया यहां से लेकर यहां तक, इस एरिया को जहां पे मैं नंबर 2 लिख रही हूं दैट इज प्लेन्स। थोड़ा सा एरिया यहाँ पे भी नदरन, हाँ जी, ठीक है। थर्ड है ग्रेट, यानी कि हमारी कंट्री में हर तरह के फिजिकल फीचर्स हैं। अगर आप माउंटेन्स में जाना चाहते हो तो आप नदरन साइड में जाओगे, अगर आप प्लेन्स एरिया देखना चाहते हो तो प्लेन्स एरियाज आप लोग। इफ यू वांट टू सी डेजर्ट यू कैन विजिट डेजर्ट, इफ यू वांट टू सी प्लेट्यूज एरियाज देन यू कैन विजिट सदर्न इंडिया, इफ यू वांट टू सी कोस्टल एरियाज देन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ठीक है। हाँ जी, इफ यू वांट टू विजिट आइलैंड्स देन यू कैन, नो श्रीलंका तो नेबरिंग कंट्री है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। हाँ जी, फोर्थ इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, हमारी कंट्री का जो सेंट्रल पार्ट है, यस ट्रायंगुलर पार्ट है, ये पेनिनसुला भी कहते हैं इसको, ठीक है। दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये है सारा। This area is marked as peninsular plateau. Clear? Then fifth is eastern coastal plain and western coastal plain. तो ईस्टर्न आपको पता है कि आपने ईस्टर्न साइड में मार्क करना है। बेटा स्टूडेंट्स हमेशा गलती करते हैं, हाँ आपके राइट हैंड साइड में हमेशा ईस्ट और इधर होगा वेस्ट, तो बहुत इजीली आप इसको मार्क कर सकते हो। Here you will mark eastern coastal plain, here you will mark western coastal plain, ठीक है। और साथ ही अगर आपको पता है कि यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है तो ईस्टर्न घाट, घाट कहाँ पे मार्क करोगे? यहाँ पे। और यहाँ पे आप मार्क करोगे वेस्टर्न घाट्स। ईजी मीन्स ईस्टर्न घाट, डब्ल्यूजी मीन्स वेस्टर्न घाट, ठीक है। अब है लास्ट आइलैंड्स। आइलैंड्स आपने अकेला आइलैंड्स नहीं लिखना, आपने इनके नाम भी लिखने हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है। अंडमान एंड निकोबार आप इसको जैसे 6 का पार्ट ए पार्ट बी, तो यहाँ पे आप मार्क करोगे 6th पार्ट ए और यहाँ पे 6th पार्ट बी, ठीक है। यहाँ पे आप 6th पार्ट बी ऐसे मार्क करोगे। तो यहाँ पे है लक्षद्वीप आइलैंड, यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड इज क्लियर। तो दीज आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ आवर कंट्री, क्लियर। अब आ जाती हैं अलग अलग डिविजन्स की फीचर्स। अभी तो जस्ट आपने नेम लिखा, बट दैट इज अ कंट्री ना, दैट इज अ कंट्री, श्रीलंका इज अ कंट्री, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इज अबाउट द डिफरेंट फीचर्स ऑफ दीज डिविजन्स। अभी सभी डिविजन्स को हमने एक्सप्लेन करना है। नंबर 1
Northern mountains. Northern mountains can be divided into different ranges. अब आपको इनकी रेंजेस पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी रेंजेस है. यस, सबसे पहले आपने नेपाल जो है उस कंट्री की जो ऊपर वाली बाउंड्री है इसको आपने लेना है फर्स्ट. मींस ये है हमारी फर्स्ट रेंज, दैट इज ग्रेटर हिमालय, जिसकी रेंज सबसे ज्यादा, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है. देन नेपाल को आपने सेकंड यानी कि मिड लाइन बनानी है इसकी, दैट इज सेकंड रेंज, दैट इज मिडल हिमालय. मिडल हिमालय ग्रेटर हिमालय से थोड़े से हाइट में छोटे होते हैं. देन नेपाल की जो बाउंड्री है इसको हमने बनानी है थर्ड रेंज, दैट इज कौन सी है ये, शिवालिक. मैनी हिल स्टेशंस आर लाइज हियर, शिवालिक. तो ये आपने अलग अलग रेंजेस बनानी है. नंबर 1 ग्रेटर हिमालय, नंबर 2 मिडल हिमालय एंड थर्ड इज शिवालिक. So these are the different ranges of northern mountains. Clear? Next is about the northern Indian plains. अब अगर plains, अच्छा साथ ही अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ बेटा explain northern mountains, तो how you will explain northern mountains? आप बताओगे northern mountains lies on the northern side of India. ठीक है, this area is covered with the mountains, different ranges are there. नेक्स्ट पॉइंट आप बनाओगे दीज रेंजेस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, फॉर एग्जांपल ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय एंड शिवालिक. नेक्स्ट लाइन मैनी हिल स्टेशंस लाइज इन द शिवालिक और हिमालयस. फिर आपने हिमालय का और भी बताना है, दैट हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट आल्सो लाइज इन द ग्रेटर हिमालय. ठीक है, फिर आपने इसके यूजेस बता देने कि माउंटेन्स के यूजेस क्या होते हैं. माउंटेन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ वाटर, मैनी रिवर्स ओरिजिनेट एंड प्रोवाइड्स अस फ्रेश वाटर. फिर माउंटेन्स का बता देना दैट माउंटेन्स प्रोवाइड हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट टू वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स. एंड इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन नॉर्दर्न माउंटेन्स. नेक्स्ट इज नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स. हाउ यू विल डिफाइन नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स? आपने इस एरिया यानी कि हमने हमारा जो ये एरिया है दैट इज नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन. ठीक है, आपने सबसे पहले इसके फीचर बताने दैट प्लेन्स एरियाज आर फॉर्म्ड बाय रिवर. संचित स्टैंड अप. हमारी इंडिया का जो नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन है, दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर? गंगा, गंगा रिवर एंड दूसरी साइड से ब्रह्मपुत्रा रिवर. So this area is known as Indo-Gangetic. इसको Indo-Gangetic भी कहते हैं. Indo-Gangetic. Why? क्योंकि गंगा रिवर जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है और गंगा रिवर के आसपास का सारा एरिया जो है वो रिवर प्लेन है. रिवर बेसिन. बेसिन क्या होता है? एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. क्लियर? सो नेक्स्ट इज इसके और फीचर्स क्या हैं? दिस एरिया नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन हैविंग एलुवियल सॉइल, या फिर हम लिख सकते हैं कौन सी सॉइल होती है? फर्टाइल. एंड दिस सॉइल इज वेरी सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस. एंड इरिगेशन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज देयर, सो पीपल प्रेफर टू लिव नियर रिवर बैंक्स. ठीक है, एंड दीज एरियाज आर हाईली पॉपुलेटेड. हाँ जी, दीज एरियाज, व्हाई दीज एरियाज आर हाईली पॉपुलेटेड? स्टैंड अप. संचित स्टैंड अप. हाँ जी, व्हाई दीज एरियाज आर हाईली पॉपुलेटेड? टूरिस्ट विजिट है. टूरिस्ट अट्रैक्शन तो मेनली माउंटेन्स या प्लेट्यूज पे ना, यहाँ तो मेन आपने बताना है बिकॉज जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर देयर, फैक्ट्रीज, कंपनीज, वाटर इज इजीली डेवलप हियर, अवेलेबल हियर, रोड्स and railway tracks can be easily constructed here.
ठीक है, फैसिलिटीज तो ये आप बता सकते हो इसमें, ठीक है। हाँ जी, कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल, व्हीट राइस के लिए एलुवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल मेनली प्लेट्यूज एरियाज, गुजरात, महाराष्ट्र, हमारी कंट्री के जो है ना ये स्टेट्स हैं, दीज आर वेरी फेमस फॉर ब्लैक सॉइल, ठीक है। हाँ जी, सो यू कैन राइट फीचर्स ऑफ नदरन इंडियन प्लेन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के फीचर्स आपने बताने हैं। अब आप पहले सबसे पहले ग्रेट इंडियन डेजर्ट का बताओगे दैट ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, mainly states covered. Second point, mainly states covered in this great Indian desert is Rajasthan, ठीक है। थर्ड, फिर आपने वहां का क्लाइमेट बता देना है। द क्लाइमेट ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज हॉट एंड ड्राई। टेम्परेचर, टेम्परेचर कैन बी रिकॉर्ड अप टू 45 डिग्री, 45 से भी ज्यादा होता है यहाँ पे टेम्परेचर। सो दैट्स वाई क्रॉप्स और ट्रीज कांट बी ग्रो हियर। एंड द सॉइल जो है यहाँ का, जो सॉइल है वो बहुत क्या है, सैंडी है। एंड ऐसी सॉइल जो है दैट इज नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, बट some of the plants can be grown like thorny bushes, cactus, date palm, and कहीं कहीं आपको यहाँ पे oases नजर आते हैं। oases क्या होते हैं? स्मॉल पूल ओरिजिनेट इन द डेजर्ट एरियाज, जिसके आसपास डेजर्ट एरियाज में कहीं कहीं क्या होता है, आपको पानी नजर आता है, उसके आसपास पाम ट्रीज होते हैं, डेट पाम ट्रीज होते हैं, और लोग इन्हीं के आसपास फिर रहना शुरू कर देते हैं। ऐसे एरियाज को क्या बोलते हैं? oases, small pools, oases, OASIS, small pools of water in the Rajasthan or in the desert areas, ठीक है। और आप क्या बता सकते हैं इसमें कितने फीचर्स हैं बच्चे? यहाँ पे मेन एनिमल कौन सा पाया जाता है? कैमल। कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज कैमल कैन लोड एंड कैमल कैन ट्रेवल विद द लॉन्ग फीट और लॉन्ग लेग्स एंड पैडेड फीट, and it can survive without water for many months. It has hump on its back that can store water and food for many days, ठीक है। so you can write features of great Indian desert. Okay, online students, yes, online students, features of great Indian desert, who will tell me? Raise your hand. Yes, Suhana, very good. Features of great Indian Yes. desert you have to tell me in 5 points. Very good, Suhana. Great Indian Desert. Great Indian Desert lies between western part of India. It is hot and dry land. It is hot, dry, and sandy land. It is also called Thar Desert. It has very little vegetation. Rajasthan lies in this desert. Temperature is up to 45 degree. Cactus, date palm plants grow here. Oases are also seen here. Very good, Suhana. Very good, beta. Here, so in this way you can write different physical features. Now next is about the peninsular plateau. अब हमने ये बताना है कि हमारी कंट्री का ये वाला जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसके क्या फीचर्स है? पेनिनसुलर प्लेट्यू के क्या फीचर्स है? इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगुलर शेप, ये एक ट्रायंगुलर शेप है। डेक्कन प्लेट्यू भी है यहाँ पे, क्योंकि डेक्कन का मतलब होता है दक्षिण, साउथ की तरफ है। अब सबसे पहले आपने ये बताना ये ट्रायंगुलर है शेप में। नंबर 1, पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ट्रायंगुलर इन शेप। देयर आर नंबर ऑफ हिल रेंजेस एंड वैलीज। घाट का मतलब क्या होता है? माउंटेन्स, बीच में वैलीज हैं, रेंजेस हैं, यहाँ पे अलग अलग रेंजेस हैं यहाँ पे। इवन रिवर्स, बहुत सी रिवर्स हैं, तो आप इसके बारे में कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अलग अलग रेंजेस हैं, अलग अलग रिवर्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट। सबसे पहले आपने बताना है यहाँ पे जो मेन रिवर है महानदी, यहाँ से बताओगे महानदी रिवर, ठीक है। महानदी रिवर जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है। देन हेयर गोदावरी, महानदी, गोदावरी, यहाँ पे इसके नीचे कृष्णा, एंड लास्ट कावेरी।
कितनी रिवर्स हैं इधर, ठीक है। यहाँ पे है नर्मदा और यहाँ पे है तापी। यहाँ पे अरावली रेंज है, लेकिन वो इधर लिखोगे आप, अरावली, अरावली इधर है। इसी कारण क्या होता है, माउंटेन मॉनसून विंड्स जो नहीं है जा पाती पीछे, बारिश नहीं कर पाती, इसलिए एरिया क्या बन गया है, डेजर्ट एरिया, ठीक है। देन इसके बाद आप इसमें बताओगे कि यहाँ पे रेंजेस हैं विंध्यास एंड सतपुड़ा। नर्मदा के ऊपर बनाओगे विंध्या एंड नर्मदा और तापी के बीच में बनाओगे सतपुड़ा रेंजेस। रेंजेस मींस जैसे माउंटेन्स की रेंजेस होती हैं, क्लियर। सो आपने बताना है। अब बेसिकली जब आप लिखोगे तो आप उसमें कैसे लिखोगे, दैट इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, दिस plateau area consists different ranges, for example Vindhya and Satpura. Then various rivers flow down like Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, drains water into Bay of Bengal. नर्मदा एंड तापी ड्रेन्स का मतलब पानी इनका इधर जा रहा है और इनका पानी इधर जा रहा है, ड्रेन्स इट्स वाटर इनटू अरेबियन सी, क्लियर। तो साथ ही आपने बताना है ईस्टर्न घाट लाइज ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न घाट लाइज ऑन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और इस तरह से आपने पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इसको एक्सप्लेन करना। नाउ ऑनलाइन स्टूडेंट्स हु विल एक्सप्लेन पेनिनसुलर प्लेट्यू। अगर आपको कुछ और पॉइंट नहीं याद आता आप लिख सकते हो अरावली इज द, जो यहाँ पे विंध्या सतपुड़ा है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रेंजेस, नर्मदा एंड तापी फ्लो डाउन हियर, rivers flow down here, ठीक है। हाँ जी, सुहान, any other student? Yes, very good. Rishika, keep your mic on. Yes, ma'am. हाँ जी, features of peninsular plateau बेटा, हाँ जी। Yes, ma'am. Peninsular plateau is a triangular shaped plateau. It has many ranges. Many rivers flow down like Krishna, Godavari, Narmada, Tapi. They flow down into Bay of Bengal, and eastern Ghats are located in the eastern side, and western Ghats are located in the western Yes, side. can you tell me what is another name of Western Ghat? What is another name of Western Ghat? Western Ghat का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री, SAHYADRI, सह्याद्री is another name of Western Ghat. Okay, ma'am. और पॉइंट क्या लिख सकते हो, these are uneven. Okay, ma'am. एरियाज uneven हैं, प्लेट्यूज हैं, तो प्लेट्यूज एरिया जो होते हैं that is not good for growing wheat and rice, but these areas are very famous for extracting minerals. मिनरल्स क्या होते हैं, जो हमें अर्थ के सरफेस के नीचे से मिलते हैं, जैसे आयरन है, गोल्ड है, कोल है, यहाँ पे बहुत सी कोल माइंस हैं, आयरन माइंस हैं, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, ठीक है, क्लियर। ओके मैम। सह्याद्री, अदर नेम ऑफ वेस्टर्न घाट इज सह्याद्री। हाँ जी भव्या, यस भव्या, कीप योर माइक ऑन। भव्या, Yes, ma'am. एनी डाउट बेटा? मैम नो, पहले का हैंड रेज है। ओके बेटा, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट आपने बताना बच्चे, आपने कोस्टल प्लेन्स के बारे में। कोस्टल प्लेन्स का बताओगे, दैट कोस्टल प्लेन्स लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ सदर्न इंडिया। इन द ईस्टर्न दीज आर कॉल्ड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इन द वेस्टर्न दीज आर कॉल्ड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इतना बनाने के बाद आपने बताना है, फिर आप सेकंड पॉइंट बता सकते हो, दैट ईस्टर्न घाट लाइज ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न घाट लाइज ऑन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। फिर आपने प्लेन्स के फायदे बताने हैं। जो कोस्टल प्लेन्स हैं, यहाँ ये सी साइड होते हैं, सी साइड का मतलब होता है सी की बाउंड्रीज इनके साथ लगती हैं, तो कोस्टल प्लेन्स का क्या फायदा होगा, दीज एरियाज, ठीक है, दीज एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पोर्ट सिटीज। बहुत सी पोर्ट सिटीज हैं। टेल मी एनी टू पोर्ट सिटीज ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के कोई भी दो पोर्ट्स बताओ। हाँ जी, विशाखापट्टनम है, कोलकाता है, ठीक है, इस तरफ की अगर आपको पता होनी चाहिए एरिया। चेन्नई, यहाँ पे चेन्नई है, ठीक है, और अगर इधर मुंबई है। अगर आपने गोवा जाना है तो कौन से प्लेन जाओगे, ईस्टर्न की वेस्टर्न?
वेस्टर्न। तो आपको पता, केरला जाना है तो कहाँ जाओगे, ईस्ट की वेस्ट, यहाँ पे है केरला, यहाँ पे तो केरला, ठीक है। कन्याकुमारी जाना है तो टिप यहाँ पे है, कन्याकुमारी सबसे एंड पे यहाँ पे साउथ में। तो वो सोच लो कि वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का ज्वाइनिंग पॉइंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोस्टल प्लेन्स के क्या फायदे हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोस्टल प्लेन्स? मैनी शिप, ठीक है, मूव टू डिफरेंट कंट्रीज। जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए आते हैं वो पोर्ट सिटीज के द्वारा ही जाते हैं। अगर हमने मुंबई से किसी और दूसरी सिटी में जाना तो हमें पोर्ट सिटीज के द्वारा ही जाना पड़ता है। तो दीज आर वेरी गुड फॉर सी ट्रांसपोर्ट कोस्टल प्लेन। हाँ, टूरिस्ट। यहाँ का क्लाइमेट बता दो कि यहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, मॉडरेट, और दैट्स व्हाई मैनी पीपल दे विजिट टू सी बीचेस। यहाँ के बीचेस को देखने जाते हैं, केरला जाते हैं। क्यों लोग जाते हैं केरला? वहाँ के बीचेस बहुत अच्छे हैं। मुंबई गोवा क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं? ओके, कैन यू टेल मी मुंबई का जो बीच है उसका क्या नाम है? जुहू, वेरी गुड, जुहू, वेरी गुड, जुहू बीच। बीच का प्रॉपर नेम होता है ना, जुहू बीच, ठीक है। ऐसे ही गोवा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, मतलब एक, वैसे तो ये स्मॉलर स्टेट है लेकिन गोवा इज वेरी गुड। टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ कोस्टल प्लेन्स। ओके बेटा, आई एम गोइंग टू एंड